Hi everyone, I hope you all are fine and doing your good. This tutorial is about to write a lexical analyzer program for the language that consists of the following, like identifiers or reservers. How identifiers will look likes and what about reservers look likes? Well, identifiers is like about always starts with an alphabet or underscore. Fine. Ever starts with alphabet or underscore. It must contain at least one character and, and one more. Uh, okay, it must contain at least one character, like either alphabet or underscore. Like this, we are here at state 0. That's the initial state. Uh, at this state, what we are saying, at least one character would be there. Either it can be an alphabet or underscore. See, letters, alphabets are represented by small l and underscore is represented by small u. So one's occurrence would be clear from here, either an alphabet or underscore. After that, any combination of alphabets, digits or underscore is allowed. Like इसके बाद से लेटर और अंडरस्कोर आ गया उसके बाद लेटर्स भी आ सकते हैं अंडरस्कोर भी आ सकता है और डिजिट भी आ सकते हैं ठीक है तो एनी कॉम्बिनेशन इज अलाउड मल्टीपल अकरेंसेस हो सकती हैं ये तो हो गया आइडेंटिफायर्स कि आइडेंटिफायर्स किस तरह से दिखेंगे second is about reserved words and reserved words is saying like always starts with dollar sign see at zero state always starts with dollar sign there must be at least one alphabet after dollar sign at least one alphabet after dollar sign and only alphabets are allowed no other like digit or underscore is not allowed okay after dollar sign at least one alphabet is would be there at least one alphabet after dollar sign and only alphabets are allowed nothing else is allowed see once dollar sign occurs after that at least one letter I mean alphabet and after that any combination of alphabets is allowed like multiple alphabets can be but nothing else is allowed I mean like no underscore or digits are allowed reserved words are kind of type like where it starts with dollar sign and only letters can be there right okay whenever letters are coming we are here at state 5 and what about identifiers we were saying like if there is letter or underscore then we will move towards state 1 and after that we said that like any combination of letters digits or underscore can be okay is allowed okay at zero state see what else I have added right here a loop for white spaces जितनी मर्जी white spaces आए उसको उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है उसके लिए कोई टोकन जनरेट नहीं होना सो हमने उसको जीरो स्टेट पे ही रखा सिमिलरली जब हम स्टेट 1 पे थे जहाँ पे हमारा आइडेंटिफायर्स कंप्लीट हो रहे थे तो यहाँ पे भी हमने ये कहा कि लेटर डिजिट अंडरस्कोर आने के बाद स्पेस आते हैं तो स्पेस के आने पे हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर वर्ड कंप्लीट हो गया और दैट वर्ड इज एन आइडेंटिफायर उसके अगेंस्ट जो टोकन जनरेट होगा वो क्या होगा आइडेंटिफायर का वाइट स्पेस अगर आती है और अगर लेटर आए अंडरस्कोर आए डिजिट आए तो स्टेट 1 पे ही वाइट स्पेस आने पे हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं और यहाँ पे टोकन जनरेट हो रहा है इसको हमने फाइनल स्टेट भी कह गया और ये रीडायरेक्ट भी है रीडायरेक्ट होने पे कंट्रोल अगेन कहाँ पे आ जाएगा जीरो स्टेट पे इनिशियल स्टेट पे और स्टेट 1 पे अगर वाइट स्पेस भी नहीं है कुछ और आ जाता है जो कि हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है लाइक लेटर्स अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ उसके बाद लेटर डिजिट अंडरस्कोर आ रहे हैं फाइन इट्स ओके लेकिन उससे हट के वाइट स्पेस भी नहीं कुछ और आ जाता है जो कि हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनेगा आइडेंटिफायर का पार्ट नहीं बनेगा उस केस में हम उसको अदर कंसीडर करके स्टेट 3 पे ले जाएंगे उसको यस ये पर्टिकुलर करेक्टर और वर्ड
फाइनल ज़रूर है कि इसका स्टार्टअप जो था आइडेंटिफायर था, लेकिन इसके लिए हम कोई टोकन जनरेट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कुछ फर्दर करेक्टर्स ऐड हो गए जो कि लैंग्वेज में अलाउड नहीं थे। सो हम फाइनल स्टेट उसको कह देते हैं, बट रीडायरेक्ट या कोई टोकन जनरेट नहीं करेंगे। सिमिलरली रिजर्व वर्ड्स के लिए भी लाइक हमने ये कहा कि जो ओनली लेटर्स एटलीस्ट वन लेटर वुड बी देयर, और उसके बाद जितने मर्जी आ जाए। और स्टेट 5 पे अगर हम देखें तो अगर वाइट स्पेस आ जाए तो फिर तो ज़्यादा उसके लिए टोकन जनरेट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे किया था। रिजर्व वर्ड का टोकन जनरेट कर रहे हैं फाइनल स्टेट की, और रीडायरेक्ट भी कर दिया सो दैट कंट्रोल अगेन जीरो स्टेट पे आ जाए। और इसके अलावा अगर लेटर्स या वाइट स्पेसेस भी नहीं है, लेटर्स हैं तो फाइव स्टेट 5 पे रहेंगे, वाइट स्पेस है तो यहाँ पे अगर वाइट स्पेस भी नहीं, कुछ और आए थे जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, लाइक उसमें सिर्फ लेटर्स अलाउड थे, अंडरस्कोर आ जाए या डिजिट आ जाए या कुछ भी और स्पेशल कैरेक्टर, तो अदर के केस में यहाँ पे आ जाएंगे स्टेट 7 पे। तो उसका स्टार्टअप तो रिजर्व वर्ड्स की तरह था, लेकिन आफ्टर फ्यू करेक्टर्स उसमें कोई ऐसा करेक्टर आ गया कि जो कि रिजर्व कीवर्ड नहीं रहा, और कुछ जो ऐसा ऐसा सर्टेन कोई वेरिएबल या कुछ ऐसा हम क्या लगे एक कॉम्बिनेशन करेक्टर आ गया या स्ट्रिंग आ गई जो हमारे लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। सो हमने कहा कि स्टेट 7 पे मूव कर देंगे, और फाइनल ज़रूर है क्योंकि रिजर्व वर्ड की तरह था, लेकिन उसके लिए टोकन कोई जनरेट नहीं करेंगे, टोकन यहीं पे जनरेट होगा, ठीक है। तो ये वाइट स्पेस का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करके हम चलाते हैं। तो जीरो स्टेट पे जितनी मर्जी बीच में वाइट स्पेस, आइडेंटिफायर पहला कीवर्ड है, आइडेंटिफायर था, कंट्रोल यहाँ से रीडायरेक्ट होने की वजह से यहाँ पे जीरो स्टेट पे आ गया, और जितनी मर्जी स्पेसिस हैं, एक लाइन दो लाइन, जब ऐसे टैब स्पेसिस हैं वट एवर, वो उसको क्या कंसिडर करेगा, जीरो स्टेट पे तो ओके, ये तो हो गया कि लैंग्वेज स्टेटमेंट अगर गिवन हो तो हम डीएफए कैसे बनाते हैं। अब डीएफए से हमने बनाना है ट्रांजिशन टेबल, और ट्रांजिशन टेबल से एक्चुअली हम एनालाइजर प्रोग्राम की तरह जाएंगे, लेक्सिकल एनालाइजर प्रोग्राम। ओके, स्टेट्स से हम इस तरह लाइक लिखेंगे 0 to 7 स्टेट्स हमारे पास टोटल डीएफए में, और जो ट्रांजिशन एजेस हैं वो किस तरह के जी, लाइक हमारे पास लेटर्स आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं, अंडरस्कोर आ रहे हैं, वाइट स्पेस है, अदर है, डॉलर है, यही थे ना 1 2 3 4 5 6 6 टाइप ऑफ ट्रांजिशन एजेस यहाँ पे हमारे पास थे। उनको हमने नेम कर लिया, कोई भी नेम कर सकते हैं, ये अपने मर्जी से करने हैं, बट मेक श्योर कि ये कोई ना कोई करेक्टर्स होने चाहिए, कोई ना कोई, ठीक है। अपने ऐसा ना हो कि कोई आप यहाँ पे से वर्ड्स की फॉर्म में लेटर्स होने चाहिए, राइट, अल्फ़ाबेट्स, रादर देन कि आप इसको डॉलर यहाँ पे डॉलर साइन ही ले लें एज इट इज, लाइक राइट, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ऐसा नहीं करना, राइट। तो ये ऐसे अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स की फॉर्म में आपने हेडिंग का टाइटल दे देना, क्योंकि इसको हमने आगे प्रोग्राम में यूज़ भी करना है, दैट्स वाई एज ए इनम ये यूज़ होगा। तो जितने भी पॉसिबल एजेस यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो सारे एज ए कॉलम आ देंगे, और स्टेट्स में एज ए रोज आ गए, और लास्ट पे आपने 3 कॉलम्स और ऐड कर देने, एक्सेप्ट स्टेट, रीडायरेक्ट स्टेट और टोकन। सी स्टेट 0 पे आउटगोइंग एजेस कितने हमारे पास, 1 2 3 3 आउटगोइंग एजेस हैं। तो एक तो है जी बल्कि या ये दो यहाँ से हैं, लेटर और अंडरस्कोर के अगेंस्ट, लेटर और अंडरस्कोर हो तो दोनों के लिए एक है, जब हमने यूज़ किया तो एक्चुअली दो आउटगोइंग हो गए। तो लेटर आए या अंडरस्कोर आए तो स्टेट 1 पे होंगे, लेटर के आने पे स्टेट 1, और अंडरस्कोर के आने पे भी स्टेट 1 कर दिया, ठीक है। या फिर इसको अगर हम यहाँ पे अगर देख लें कि जब लेटर आया जीरो स्टेट पे तो हमने उसको स्टेट 1 पे मूव कर दिया, अंडरस्कोर है तो भी स्टेट 1 पे मूव कर दिया, और डॉलर साइन आए तो फिर स्टेट 4 पे, डॉलर साइन आए तो स्टेट 4 पे मूव कर दिया। एक्सेप्ट स्टेट नहीं है, रीडायरेक्ट भी नहीं है, कोई टोकन भी जनरेट नहीं हुआ, अब आ जाते हैं स्टेट 1 पे। स्टेट 1 पे हमारे पास 1 2 3 आउटकम ये हो गए, और 4 और 5 है जी। लेटर अंडरस्कोर और डिजिट के लिए स्टेट 1 पे है, लेटर अंडरस्कोर और डिजिट के लिए स्टेट 1 पे है, लेटर अंडरस्कोर और डिजिट स्टेट 1। उसके बाद वाइट स्पेस आए तो स्टेट 2 पे, और अदर के केस में स्टेट 3। वाइट स्पेस तो स्टेट 2, और अदर के केस में स्टेट 3 पे, रेस्ट आर एम्प्टी। क्या ये स्टेट 1 एक्सेप्ट नहीं है, रीडायरेक्ट भी नहीं है, टोकन भी नहीं है, सो नेक्स्ट चलते हैं स्टेट 2 पे। स्टेट 2 का कोई आउटकम नहीं है, सो एम्प्टी रहने देंगे। यस इट्स एन एक्सेप्ट स्टेट, इज अ फाइन रीडायरेक्ट स्टेट आल्सो, एंड आइडेंटिफायर का टोकन भी जनरेट हो रहा है, राइट। आफ्टर दैट स्टेट 3 इज देयर, स्टेट 3 पे हमारे पास लाइक कोई अगेन कोई आउटगोइंग नहीं है, फाइनल स्टेट जरूर है, बट इट्स नॉट अ रीडायरेक्ट स्टेट, और कोई टोकन भी जनरेट नहीं हो रहा, राइट।
सो स्टेट थ्री कोई ऐसा ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्ट स्टेट है, रीडायरेक्ट भी नहीं है, ठीक है। सो जीरो, और आइडेंटिफाई कोई टोकन भी जनरेट नहीं हो रहा, तो सो यहाँ पे भी जीरो। व्हाट अबाउट स्टेट फोर? स्टेट फोर पे एक ही आउटकम कहते हैं लेटर के अगेंस्ट, लाइक लेटर आए तो स्टेट फाइव पे हम चलेंगे, स्टेट फोर से लेटर्स आने पर हमने कहा कि स्टेट फाइव रेस्ट आर एम्प्टी, और ये कोई फाइनल स्टेट नहीं है, रीडायरेक्ट भी नहीं है, और कोई टोकन भी जनरेट नहीं हो रहा स्टेट फोर। व्हाट अबाउट स्टेट फाइव? स्टेट फाइव पे एक दो तीन थ्री आउटकम कैचेस हैं, लाइक वन इज अ फॉर लेटर्स। अगर स्टेट फाइव पे लेटर्स आए तो अगेन हम स्टेट फाइव पे ही हैं, सो यहाँ पे स्टेट फाइव मेंशन कर दिया। और अगर वाइट स्पेस या अदर, वाइट स्पेस के केस में सिक्स और अदर के केस में सेवन, वाइट स्पेस में सिक्स और अदर में सेवन। रेस्ट फाइव स्टेट जो है कोई एक्सेप्ट रीडायरेक्ट या कोई टोकन जनरेट नहीं हो रहा, सो जीरो जीरो जीरो। और अबाउट सिक्स और सेवन, स्टेट सिक्स एंड सेवन के अगेंस्ट कोई ट्रांजिशन है जो आउटगोइंग अवेलेबल नहीं है, और एक्सेप्ट रीडायरेक्ट हम दे रहे हैं, स्टेट सिक्स जो एक्सेप्ट भी है, रीडायरेक्ट भी है, टोकन भी है, वो लिख दिया। और स्टेट सेवन एक्सेप्ट है, रीडायरेक्ट नहीं है, टोकन भी नहीं है। सो इस तरह से हमने इसको फिल कर लिया। यस, अब ये जो एम्प्टी सेल्स हैं इनको हम लाइक फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल you can go here, find and select or replace empty with say -1. So replace all. See here, 35 replacements are done. Like here, -1 we have used like just to make sure, और हमारे लिए ये अंडरस्टैंडिंग होगी और क्लियरेंस होगी कि जी जब कभी भी स्टेट -1 हो जाए, व्हाट डज दैट मीन कि वहाँ पे ये लाइक इस स्टेट पे थे और -1 आ जाए किसी भी सिस्टम में, तो वह को एक्चुअली कोई आउटगोइंग ना होने की सूरत में -1 है। तो प्रोग्राम में कहीं हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे लिए इंडिकेशन होगी, जब कभी स्टेट की वैल्यू -1 हो जाए तो वो ये इंडिकेट करेगा कि ये पर्टिकुलर स्टेट के अगेंस्ट, पर्टिकुलर कैरेक्टर के अगेंस्ट कोई ट्रांजिशन है जो अवेलेबल नहीं था, और वो नहीं है, तो उसका मतलब ये होगा कि हमारी लैंग्वेज का पार्ट भी नहीं है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर। इस तरह से लाइक हमने लैंग्वेज स्टेटमेंट को देखते हुए डीएफए डिज़ाइन कर लिया, और डीएफए से हमने ट्रांजिशन टेबल बना लिया। और ट्रांजिशन टेबल से हम क्या करेंगे, लाइक हमने एक्चुअली इस जो टाइटल्स हैं इसको हमने प्रोग्राम में यूज़ करना है एज ए इनम, राइट। I may share the screen. Here. What I have to do next, like simple copy this. Say, okay, fine. First, we need only this, or paste it in Notepad file. Like for example, here. Now copy this space. Control F and replace this space with this one. Like whole file. Okay, actually I haven't selected whole file, so I need to do it one by one. Okay, fine. तो अब क्या करेंगे जी, इसमें से इसको कॉपी करें, कोड में जाएंगे, यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देना। ये एक इनम क्रिएट करता है, आई विल एक्सप्लेन कि किस लिए क्रिएट किया दिस। इसको फर्स्ट जो करेक्टर है उसको हम स्टार्ट कर देंगे विद 0, और ये ऑलरेडी आई हैव डन, राइट। आफ्टर दैट एक 2D अरे यूज हो रही है ऑफ साइज 9 और 8 और 9 सी। हमारे पास एक्चुअली जो टोटल रोज कितनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 7, तो टोटल 8 स्टेट्स हैं, दैट्स वाई हमने जो इनम क्रिएट किया 8 rows and 9 columns. See, columns are 9, starting from here to here. These are 9, right? See, 9. Okay. अब क्या करेंगे, इनको हमने कॉपी करना है, कमांड सी, और पेस्ट कर लें लाइक यहाँ पे। once again control C, command A, control F, control V, और हम कहते हैं रिप्लेस। ओके, ये वन बाय वन करें। अब इसको कंट्रोल ऑल करके सारे रिप्लेस कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे जी,
ओके, एक एक पैरामीटर पिक करना है, लाइक फर्स्ट पैरामीटर, इसको कॉपी करके आपने 2D अरे के एज ए पैरामीटर यहाँ पे एक यहाँ पेस्ट कर देना है, सी 1 -1 1 0 -1 4 0 0 सी, राइट। और सेकंड रो पिक करनी है लाइक दिस, कॉपी करना है, second as a second parameter differentiated with comma, curly brackets, and every parameter will be again in a curly bracket or separated by comma till second last. See, right? uh, Identifier and reservers, whatever the tokens are, इनके के लिए भी हमें एक इनम क्रिएट करना होगा और वहाँ पे इनको स्पेसिफाई करना होगा। फर्स्ट वन आइडेंटिफायर और सेकंड इज रिजर्वर। सो इस तरह से हमने क्या करना है कि यहाँ से ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए हमने enum और 2D array क्रिएट कर ली इन आर प्रोग्राम, राइट। वेल, enum क्रिएट किया है लाइक कॉलम नेम्स के नाम से, क्योंकि हमने एक्चुअली कॉलम नेम्स ही पिक किए हैं ट्रांजिशन टेबल से। और स्टेटेड लाइक सीक्वेंस वही रखना है एज इट इज, और ठीक है। रिटर्न टाइप, ओके फाइन, कोई नहीं, इनम क्रिएट कर लिए। और इनम क्रिएट करने का सिंटैक्स ये कर्ली ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन में जितने वेरिएबल्स हम मेंशन करेंगे एज इट इज क्रिएट हो जाएगा। और जब कभी हमसे, जैसे कि यहाँ पे ये फंक्शन है गेट कैरेक्टर टाइप का फंक्शन, इसकी रिटर्न टाइप क्या कॉल नेम, तो यहाँ से हम कुछ भी जो भी रिटर्न करेंगे वट एवर वी आर रिटर्निंग, वो दैट मस्ट बिलोंग्स टू दीज कैरेक्टर्स। और व्हाट डज दैट मीन वुड बी लाइक, हम रिटर्न कर रहे हैं लेटर्स, तो यहाँ से जीरो रिटर्न हो जाएगा। एक्चुअली रिटर्न टाइप क्या है, एक इनम है, वो जीरो रिटर्न। अगर हम रिटर्न कर रहे हैं डिजिट, तो यहाँ से वन रिटर्न होगा, वन पे इंक्रीमेंट के साथ। फिर अगर डॉलर रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से कंडीशन ये मैच होती है, डॉलर रिटर्न होता है, तो क्या रिटर्न होगा जी, 0 1 2 3 4, तो यहाँ से फोर रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली अब एक काम ये भी करना है, गेट कैरेक्टर टाइप का फंक्शन भी बनाना है आपने। जितने भी इनम के अगेंस्ट हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, ट्रांजिशन एजेस थे, उनके अगेंस्ट या ना कॉलम, हर एक के अगेंस्ट हमने गेट कैरेक्टर टाइप का फंक्शन में के अंदर इफ एल्स लगाना है। सी इफ ये कैरेक्टर एक्चुअली हम जो पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल में जो हमारे पास कंटेंट होगा लाइक दिस, हमाद अली ब्ला ब्ला ब्ला, जो हमारी लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले हैं, उनको जब रीड करेंगे तो वो एक करेक्टर को मैं यहाँ पे पास करूँगा चेक करने के लिए कि वो करेक्टर लेटर है, डिजिट है, अंडरस्कोर है, डॉलर है, वट है, कि वो क्या है। तो वो यहाँ से चेक किया जाएगा इस फंक्शन में पास करके, तो वो इन इनमें से ही बिलोंग कर रहा होगा जो हमारी हमने डिफाइन कर दिया DFA ट्रांजिशन टेबल, और उसके अगेंस्ट जो हमने इनम डिफाइन कर दिया। तो चेक इफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर इज अल्फाबेट, ठीक है, इज अल्फा, तो रिटर्न लेटर्स, ठीक है, ये भी सेम होना चाहिए जो यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया एज इट इज, वही रिटर्न करना। एज इफ अगर अल्फाबेट नहीं है तो चेक इफ इज इट अ डिजिट, तो देन रिटर्न डी डिजिट। एज इफ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज ट्रूली इक्वल अंडरस्कोर, तो रिटर्न कर दें क्या जी, कैपिटल यू, जो कि अंडरस्कोर के लिए हमने लिया। अगर ट्रूली इक्वल डॉलर साइन है तो रिटर्न कर दे डॉलर। if it is space, else if is space particular character, तो रिटर्न करें वाइट स्पेस। एल्स केस में क्या कर दें, रिटर्न अदर, कुछ अदर है, राइट। तो ये हमने सारे केसेस कवर कर लिए। तो ये गेट कैरेक्टर टाइप का फंक्शन हो जाएगा। जो भी लैंग्वेज है उसका DFA बनाया ट्रांजिशन टेबल पर, ट्रांजिशन टेबल से उसके कॉलम नेम्स के अगेंस्ट हमने इनम क्रिएट कर लिया, और इन कॉलम नेम्स के अगेंस्ट हमने यहाँ पे इक्वल लगा दिया। से हमारे पास कॉलम नेम्स आ जाते हैं 30 40 50, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ DFA और ट्रांजिशन टेबल। तो डेफिनेटली हमारे पास इक्वल भी उतने ही इंक्रीज हो जाएंगे, 30 35, राइट। ओके, तो ये हो गया गेट कैरेक्टर टाइप का फंक्शन। मेन में अभी हमने दो अरेज लिए, लाइक एक B1 बफर के नाम से और दूसरे B2 बफर। ये 2D अरे हमने ले ली, राइट। उसके बाद इफ स्ट्रीम क्लास फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है, फाइल टेस्टिंग डॉट TXT फाइल हमने रीड करनी है, तो इफ स्ट्रीम के अगेंस्ट एक लाइब्रेरी ऐड किया स्ट्रीम फाइलिंग की। तो इस स्ट्रीम का एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसके थ्रू, इस सब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास का मेथड कॉल किया डॉट ओपन, तो ये इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर देगा। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया करंट बफर के नाम से, और उसको साइन कर दिया B1। लेटर और हम जब उसके अगर इससे भी कंटेंट ज़्यादा हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे डॉट गेट का, तो वो उस टाइम पे हम बफर जो चेंज कर देंगे, B2 असाइन कर देंगे करंट बफर को, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में, राइट।
ओके, टिल एंड ऑफ फाइल ये कंट्रोल भी अपने पास रखेगा जब तक, और जितनी दफ़ा भी ये कॉल होता जाएगा फंक्शन, वो लाइक इनिशियल फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो फर्स्ट 4096 सेक्टर्स का जो डाटा होगा वो टेक्स्ट फाइल से पिक करेगा और जो भी बफर है उसमें स्टोर कर देगा। दिस वन करंट बफर में उसमें किसके पास किसका रेफरेंस होगा, या तो B1 का होगा या B2 का होगा। सिमिलरली सेकंड टाइम अगर जहाँ कहीं भी प्रोग्राम के अंदर ये कॉल हो रहा होगा तब वो सेकंड टाइम जो होगा 409 फर्स्ट 4096 छोड़ के सेकंड 4096 बाइट का करेक्टर का जो डाटा है वो पिक कर लेगा। थर्ड टाइम कॉल होगा तो थर्ड एंड सो ऑन रिपीटेडली चलता रहेगा टिल अनटिल अनलेस फाइल एंड नहीं हो जाती रहेगी। ये वेरिएबल ले लिया काउंट जीरो का, स्टेट वेरिएबल लिया वो भी जीरो, सेम एक वो नंबर ऑफ करेक्टर जो हम रीड कर रहे होंगे, एक आइडेंटिफायर है या रिजर्व वर्ड, तो उसके जो भी कैरेक्टर्स होंगे लेक्सिम में स्टोर करने के लिए, एक एरे में स्टोर करने के लिए हम इसका लेक्सिम के नाम से एरे ले लिए, और इंट जे इज इक्वल हमने जीरो ले लिया। वाइल जब तक करंट पॉइंटर, अब करंट बफर को इधर B1 या B2 इसमें डाटा भी लोड होगा, जब तक वो एंड नहीं होए तब बैकस्लैश एंड ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक नॉट इक्वल दिस स्टेटमेंट वो उसमें कंटेंट इज देयर तो डू दिस जो भी वाइल में मेंशन है, और वहाँ यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया, अगर तो इफ स्टेट इज ट्रूली इक्वल इज नॉट इक्वल -1, इनिशियली जीरो है -1 नहीं है, जब कभी -1 होगी तो हम कहते हैं ये पार्ट नहीं चलना चाहिए और एल्स केस में आ देंगे। एल्स केस में हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जब कभी -1 आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि उसके बाद हम करंट बफर में जो कैरेक्टर भी रीड कर रहे हैं ना, सी करंट बफर डॉट काउंट इंडेक्स के लिए यूज हो रहा है काउंट, जो बफर करेक्टर रीड कर रहे हैं अगर वो स्पेस नहीं है तो बस काउंट में एक इंक्रीमेंट करते हैं और उस पर्टिकुलर फैक्टर को हम इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा, लूप चलेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर अगेन वो ऊपर स्टेट -1 नहीं होगी, स्टेट नहीं चेंज होगी, राइट। तो अगेन अगली दफ़ा भी ये क्या करेगा, -1 है और यहाँ एल्स पार्ट में आएगा स्पेस नहीं है तो फिर क्या करेगा, वंस अगेन काउंट इंक्रीमेंट अगला कैरेक्टर अनटिल एंडलेस स्पेस नहीं है, जैसे स्पेस आएगी उससे पहले अब जो भी हमने रीड किया हो चूँकि -1 आ गया था, वो जितने भी कैरेक्टर थे वो हमारी लैंग्वेज के पार्ट नहीं थे, सो उसको हमने स्किप कर दिया। और अगर प्रिंट करना चाहें तो यस वी कैन प्रिंट हेयर कि ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं था, राइट। और वेल जैसे ही स्पेस आ जाएगी उस केस में क्या है, एल्स केस में अब स्टेट अगेन जीरो हो जाए, जे का इंडेक्स भी जीरो और काउंट प्लस प्लस हो गया साथ, सो दैट नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करें होगा, अगर हमारी लैंग्वेज का पार्ट है इधर आइडेंटिफायर और रिजर्वर तो वहाँ पे चले जाएंगे। और फॉर एग्जांपल अभी राइट नो इनिशियली अभी हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फाइल ये है जैसा कि एच था हमार, और इनिशियली स्टेट भी हमारे पास क्या है, जीरो, तो -1 नहीं है, कंडीशन जो है ट्रू होगी और इनसाइड आ गई। फिर तो यहाँ पे क्या, यदि पर्टिकुलर ट्रांजिशन टेबल में चेक कर रहा है दिस स्टेट लाइक जीरो स्टेट और क्या वो एक्सेप्ट है या नहीं, तो रो दिस और कॉलम दिस ट्रांजिशन टेबल में जीरो स्टेट, और अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ 6 7 8 जो भी होगा ये रिटर्न करेगा यहाँ से। एक्चुअली ये क्या है, यस ए रिप्रेजेंटिंग 6, how it is 6, see from here 1 2 3 4 5 6, that's why, right. So what it is representing like zero row or column is 6 column check कर, अगर accepting state नहीं है तो do this, otherwise else part में आ जाए, ठीक है। और पर्टिकुलर स्टेट में हम कहते हैं जी पर्टिकुलर जीरो स्टेट में 6 कॉलम पे टू डी अरे में देखना, जीरो स्टेट के लिए ये वाला जीरो पैरामीटर है और कॉलम 6 0 1 6 दिस वन, ये यहाँ पे जीरो है, एक्सेप्ट स्टेट नहीं है, एक्सेप्ट स्टेट नहीं है तो जो भी इनसाइड है वो उसको हम देखते हैं क्या जी, सिंपली तो वो पर्टिकुलर स्टेट जीरो और कॉलम कौन सा, अब करेक्टर कौन सा रीड कर रहे हैं, करेक्टर है हमारे पास एच, अब एच के अगेंस्ट गेट करेक्टर टाइप को फंक्शन को पास होगा, और गेट करेक्टर टाइप फंक्शन हियर, राइट, यहाँ पे एच पास हुआ इज एन अल्फाबेट, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी फर्स्ट, रिटर्न लेटर्स तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, एक्चुअली जीरो, जीरो रिटर्न होगा, सी स्टेट जीरो और कैरेक्टर वहां से क्या रिटर्न हुआ, जीरो जीरो, कॉलम भी जीरो, स्टेट रो जीरो और कॉलम भी जीरो, वहां पे देखते हैं वैल्यू क्या है, वो पर्टिकुलर स्टेट की हो जाएगी टी अरे में, ट्रांजिशन टेबल के अरे, रो जीरो और कॉलम भी जीरो, तो वहाँ पे वैल्यू क्या हमारे पास 1, तो ये स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 1 हो जाएगी, ठीक है। Okay, उसके बाद
वो पर्टिकुलर करेक्टर जो भी है लेक्सी में स्टोर भी कर दिया, काउंट में इंक्रीमेंट कर दिया, जे में भी इंक्रीमेंट कर दिया। वो लेक्सी में स्टोर हो गया, काउंट में इंक्रीमेंट हो तो ये होगा, जे में इंक्रीमेंट हो तो वो पर्टिकुलर लेक्सी में जो स्टोर होगा उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, एल्स नहीं चलेगा, और इसके इफ के अगेंस्ट एल्स भी नहीं चलेगा। अकाउंट में इंक्रीमेंट है दोबारा, उसके बाद वाइल है, तो दोबारा इस यहाँ पे आएगा अगेन स्टेट -1 नहीं है, और वो पर्टिकुलर अब स्टेट क्या 1 और ये 6 1, मतलब रो 6 और कॉलम, सॉरी रो 1 और कॉलम 6 देखते हैं एक्सेप्टिंग है या नहीं। रो 1 और कॉलम 6 ये भी एक्सेप्टिंग नहीं है। एक्सेप्टिंग नहीं है तो कंडीशन ट्रू होगी। तो वंस अगेन वो चेक करेगा टाइप को, ए के अगेंस्ट भी हमें टाइप क्या मिलेगी, करेक्टर ही, 0 वहाँ से रिटर्न होगा। कॉलम 1 और रो, सॉरी रो 1 और कॉलम 0, रो 1 कॉलम 0 वहाँ पे 1 है तो स्टेट 1 ही रहेगी। और वो पर्टिकुलर करेक्टर ए भी लेक्सीम में स्टोर हो जाएगा एरे में, काउंट में इंक्रीमेंट, जे में भी इंक्रीमेंट, और उसके बाद ये एल्स केस इसके अगेंस्ट जो था वो भी नहीं चलेगा, और इस इफ के अगेंस्ट एल्स भी नहीं चला, उसके बाद लूप आ गया। वाइल में अगेन यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करेगा, अनटिल एनलेस HAMAD हम आज ये रीड कर लेते हैं, तब तक स्टेट 1 ही रहनी है और लेक्सी में स्टोर हो रहा है। जैसे ही डी के बाद स्पेस आती, स्पेस आने पे अगर हम इसमें भी देखें, चले बल्कि इधर क्यों देख रहे हैं, स्पेस आ गई जब, स्टेट तब तक अभी 1 ही थी, स्टेट रो 1 कॉलम 6 एक्सेप्ट नहीं है, रो 1 और ये या अब यहाँ पे जो है ना, स्पेस के केसेस में यहाँ से क्या रिटर्न होगा, कट करके टाइप उधर जाते हैं, इस स्पेस रिटर्न वाइट स्पेस, और वाइट स्पेस ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, करेक्टर पर्टिकुलर करेक्टर स्पेस आई और ये कंडीशन ट्रू होगी, एल्जिफ वाली वाइट स्पेस रिटर्न होगा, और वाइट स्पेस रिटर्न होने पे क्या वैल्यू रिटर्न होगी, 1 2 3 0 1 2 3 रिटर्न हुआ। तो स्टेट 1 है, रो 1 है और कॉलम क्या आ गया 3, रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 0 1 2 3, वहाँ पे हमें 2 मिल रहा है। और अगर हम यहाँ ट्रांजिशन टेबल में भी देखें, सी रो 1 और कॉलम 3 ये 2 ही था। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें और 2D अरे से भी वही 2 मिल रहा है। दिस वन 2 मिल गया, तो ये स्टेट की न्यू वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे रो 1 थी और कॉलम यहाँ पे हमें मिला था 3, और उसके अगेंस्ट स्टेट की वैल्यू मिली 2, स्टेट 2 हो गई। 2 होने पे अगेन ये पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ पे वो स्पेस भी यहाँ पे स्टोर हो गई, काउंट में इंक्रीमेंट हो गया, जे प्लस प्लस हो गया। और चूंकि इफ इस इफ के अगेंस्ट एक्चुअली क्या है जी, इस इफ के अगेंस्ट ये फाइन ठीक है, अभी ये चल गया। अब स्टेट हो गया 2। अब स्टेट 2 होने पे नेक्स्ट टाइम जब ये लूप में आएंगे, क्योंकि ये इफ चल गया एल्स नहीं चलेगा यार, उसके बाद डेफिनेटली इस इफ के अगेंस्ट एल्स भी नहीं चलना, वाइल में आ गए नेक्स्ट फैक्टर, और जब स्टेट -1 नहीं है और अब स्टेट कौन सी 2 और एक्सेप्ट, वो तो फाइनल स्टेट है, सी रो 2 और यहाँ पे ये तो फाइनल है, जैसा कि यहाँ पे भी हमारे पास था सेकंड स्टेट रो 2 और ये एक्सेप्ट है, और यहाँ पे भी देख ले एक्सेप्ट है। तो यहाँ कोड में भी हमें 2D अरे से भी ज़ाहिर है वही रिट्रीव होना है, रो 2 स्टेट 2 और कॉलम 6, तो वहाँ से 1 मिल गया। अब अगर एक्सेप्टिंग स्टेट होगी तो ये तो नहीं चलना, ठीक है। अब क्या होगा, एल्स केस में आ जाएंगे, एल्स केस में क्या किया सिंपली, जो भी लास्ट इंडेक्स है लेक्सीम का वहाँ पे जे 0 स्टोर करवा दे, >0 एंड ऑफ स्टेटमेंट, और इफ कंडीशन लगाए कि क्या वो रीडायरेक्ट स्टेट भी है। रीडायरेक्ट इसलिए चेक करें, अगर रीडायरेक्ट है तो टोकन जनरेट करेंगे, और ऐसा केस भी तो हो सकता है रीडायरेक्ट ना होती, फाइनल होती बट रीडायरेक्ट नहीं है, तो उस केस में टोकन जनरेट नहीं करेंगे। अगर रीडायरेक्ट स्टेट है लाइक दिस, रीडायरेक्टिंग है, ये भी अगेन 7th कॉलम को चेक कर लेगा, 2 और 7, रो 2 और स्टेट 2 और 7 पे भी 1 है, रीडायरेक्टिंग है। अगर रीडायरेक्टिंग है तो उस केस में ये प्रिंट करेगा
ये पर्टिकुलर इफ पर्टिकुलर टी रो और टोकन नॉट ट्रूली इक्वल जीरो, यस वहाँ पे डेफिनेटली जीरो भी होगा। वो अगर हम चेक भी करें टोकन स्टेट पर, इसमें जीरो। अच्छा हाँ, ये चेक कर रहा है कि लाइक टी टी स्टेट टी सेकंड स्टेट है ना, और कॉलम टी के अगेंस्ट हमारे पास क्या बनता है, उसको चेक करेगा ट्रूली इक्वल जीरो। एक्चुअली टी के अगेंस्ट हमने ये आइडेंटिफायर को जीरो किया और रिजर्व वर्ड के लिए वन कंसीडर होगा, ये वाली इन टोकन्स वाली जो है इसको एक्चुअली चेक कर आइडेंटिफायर जब रिटर्न होगा तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर ट्रूली इक्वल जीरो तो हम कह देंगे सी आउट लेक्सिम जो भी अरे में स्टोर किया था लेकिन, और साथ ही लिख दिया आइडेंटिफायर टैब स्पेस के साथ और न्यू लाइन भी कर। और अगर वन है तो उस केस में रिजर्व वर्ड्स के लिए वन होगा, ठीक है, जो इनम है। आइडेंटिफायर के लिए जीरो, रिजर्व वर्ड्स के लिए वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजर्व वर्ड्स वन है तो रिजर्व वर्ड्स। ओके, ये इस तरह से ये चेक लगा दिया और हमने शो कर दिया, और जब ये प्रिंट कर दिया एल्स इफ दिस और एल्स नथिंग, और उसके बाद ये अगेन जीरो हो जाए क्योंकि वो जो भी लेक्सीम थी वो हमने उसके अगेन टोकन भी जनरेट कर दिया, अब जीरो कर दें सो दैट नेक्स्ट जो भी लेक्सीम आएगी जो भी वर्ड आएगा उसको इधर आइडेंटिफायर और इधर वर्ड वो लेक्सीम के जीरो इंडेक्स पे स्टार्ट करेंगे, और स्टेट को भी जीरो कर दिया ताकि नए वर्ड के लिए नए से। अब आए थे नेक्स्ट जी उसके बाद अंडरस्कोर वाला। अब अगेन अब देखें स्टेट जीरो होगी तो ये कंडीशन जो -1 थी, अभी तक इससे पहले -1 ही थी, तो ये कंडीशन मतलब -1 सॉरी स्टेट टू थी। अब स्टेट जीरो हो गई तो अगेन ये कंडीशन फॉल्स ही है, और यहाँ पे आ जाएगी स्टेट टू पे और अंडरस्कोर। जब अंडरस्कोर आएगा तो वो भी अलाउड है, डेफिनेटली यही प्रोसेस चलेगा। लाइक आइडेंटिफायर के लिए अगर एच वाला चल गया तो अंडरस्कोर वाला भी चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, ये एक्सेप्ट स्टेट नहीं होगी ना, जीरो स्टेट कर दी ना हमने, स्टेट जीरो, जीरो रो और कॉलम 6 पे एक्सेप्ट नहीं है, हमने पहले भी चेक किया। अब ये चेक करना अंडरस्कोर के लिए हमें क्या रिटर्न होता है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर 012 रिटर्न होगा, ठीक है। और रो हमारे पास जीरो और सेकंड कॉलम, जीरो रो कॉलम सेकंड, वहाँ पे हमें मिल गया वन, तो ये स्टेट की नई वैल्यू हो जाएगी, स्टेट की न्यू वैल्यू वन हो जाएगी। और जो भी कैरेक्टर था वो लाइक जी में स्टोर हो जाएगा, अकाउंट में इंक्रीमेंट, जे में इंक्रीमेंट, जे वन हो जाएगा, जीरो हो चुका हुआ था पहले यहाँ पे, जे जीरो स्टेट जीरो। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर इज ए अल्फाबेट्स। तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट हमें जो भी रिटर्न होगा, लेट्स सी स्टेट वन है, और अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट क्या रिटर्न होगा, स्टेट वन, अल्फ़ाबेट्स पे लेटर रिटर्न होगा जीरो, वन और जीरो पे अगेन वन, स्टेट जीरो, स्टेट वन और कॉलम जीरो वन। तो ये स्टेट की वैल्यू वन ही रहेगी, ए पे भी, एल पे भी, आई पे भी। उसके बाद जब स्पेस आएगी, स्पेस आने पे क्या होगा जी, स्टेट टू पे मूव कर चुका होगा, जैसे यहाँ पे आने पे मूव करेगा तो यहाँ पे भी सिमिलरली मूव कर देगा। जब स्टेट टू होगी तो वो एक्सेप्टिंग है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स केस में उसको भी प्रिंट कर देगा, उसके अगेंस्ट टोकन भी जनरेट कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब जब डॉलर साइन आएगा तब देखते हैं क्या होगा। डॉलर साइन आया, कैट कैट टाइप किया, स्टेट तब भी -1 नहीं थी, ठीक है। डॉलर साइन पे रिटर्न क्या हुआ जी, 0 1 2 3 4 5, 5 रिटर्न हुआ। तो यहाँ पे स्टेट जीरो थी क्योंकि ये यहाँ स्पेस के बाद अगेन स्टेट वो हमने टोकन जनरेट कर दिया ना, उसके बाद जीरो ही होनी, स्टेट जीरो। गेट कैरेक्टर टाइप, यहाँ से हमें क्या मिला, 5, जीरो रो और कॉलम 5, जीरो रो कॉलम 5 से हमें मिलना चाहिए एक्चुअली जीरो रो कॉलम 4, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें, सी जीरो रो और कॉलम 5, जीरो स्टेट और कॉलम लाइक 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे भी डॉलर के अगेंस्ट स्टेट 4 पे, तो जीरो स्टेट पे थे, लाइक जीरो रो और कॉलम 5 दिस वन, तो वो 4, तो ये एक्चुअली इसकी वजह से।
ये 4, तो यहाँ पे हमारे पास 0 रो लाइक स्टेट 0 और कॉलम 5, वहाँ पे 4 मिल गया कि स्टेट 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेट की वैल्यू 4 होगी, और जो भी करेक्टर था डॉलर साइन यहाँ पे लेक्सी में स्टोर होगा, काउंट में इंक्रीमेंट, जे में इंक्रीमेंट। अगला करेक्टर क्या दी, AHMAD, ए के अगेंस्ट लेटर के अगेंस्ट 0 रिटर्न होगा। स्टेट हमारी 4 हो चुकी है, 4 और 0, स्टेट 4 0 1 2 3 4, स्टेट 4 और कॉलम 0 5 मिल जाएगा। क्यों, लाइक दिस, यहाँ पे थे ना, तो इसके बाद अगर लेटर आए तो कहाँ पे 5 पे जा रहे हैं, सो दैट्स वाई स्टेट 4 और लेटर आए तो 5 यहाँ से भी, और सिमिलरली यहाँ से भी हमें सेम मिल गया। ठीक है, 5 फोर्थ स्टेट और कॉलम 0 जो है वहाँ पे हमें 5 मिल गया। ए के अगेंस्ट, इस ए के अगेंस्ट हमें लेटर से अगेंस्ट 0 रिटर्न हुआ ऊपर से इनम से, यहाँ से तो 0 स्टेट 4 थी और कॉलम 0, वहाँ से 5 मिल गया, अब स्टेट 5 होगी। अब नेक्स्ट एच पे भी हमें लेटर के अगेंस्ट 0 मिलेगा, तो स्टेट 5 और कॉलम 0, स्टेट 5 को देखें और कॉलम 0 तो भी 5 ही है, जैसे कि यहाँ पे भी था, DFA 5 है, लेटर आ रहे हैं तो यहीं पे स्टेट 5 और लेटर के अगेंस्ट 5, दैट्स वाई यहाँ पे भी हमें वही मिल गया, स्टेट 5 और लेटर के अगेंस्ट 0, 0 कॉलम पे 5 ही है। ठीक है, और ये स्टोर करता जाएगा अनटिल अनलेस ये स्पेस आ जाती है। जैसे ये स्पेस आएगी तो ये पर्टिकुलर जो भी कैरेक्टर है इसमें रिजर्व वर्ड्स वाला ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और रिजर्व वर्ड्स को प्रिंट कर देगा। वो पर्टिकुलर लेक्सिम को सी आउट भी कर रहा है, साथ में लिख देगा रिजर्व वर्ड। उसके बाद अब इस पे आते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। जैसे एच पे आएंगे, स्टेट 0 हो चुकी होगी प्रिंट करने के बाद, यहाँ पे आए, अब ये एक्सेप्ट स्टेट नहीं है 0 जो है, सो ये कंडीशन ट्रू, 0 रो और कॉलम एच के अगेंस्ट क्या हमें मिलेगा, वहाँ से लेटर रिटर्न होगा, तो वो 0 0 रो और 0 कॉलम, 0 रो और 0 कॉलम, सॉरी 0 रो 0 कॉलम 1 मिल गया। तो यहाँ से हमें स्टेट क्या मिल जाएगी, 1, 0 रो कॉलम 0 स्टेट 1, मतलब 0 स्टेट और कॉलम 0, तो स्टेट 1 मिल। उसके बाद ए के अगेंस्ट भी सेम वो पर्टिकुलर कैरेक्टर लेक्सी में स्टोर होगा। उसके बाद ए आ गया, ए के अगेंस्ट भी हमें सेम वो रो स्टेट 1 है और लेटर के अगेंस्ट हमें 0 मिलेगा, स्टेट 1 और कॉलम 0, स्टेट 1 और कॉलम 0 के अगेंस्ट अगेंस्ट स्टेट 1 नहीं है, ये स्टेट 1 ही रहेगी। और इसके बाद जब 3 आएगा, ये अब डिजिट्स के अगेंस्ट क्या रिटर्न होगा हमें, यहाँ से स्टेट 1 और डिजिट के अगेंस्ट क्या रिटर्न होगा, गेट कैरेक्टर टाइप से डिजिट 0 1 1 रिटर्न हो गया। ठीक है, 1, तो यहाँ पे स्टेट 1 थी और रो यहाँ पे कॉलम भी कौन सा रिटर्न हो, 1 1 1 1 1, सी 1 0 1 1 1, स्टेट 0 1 और 1, यहाँ पे अगेन क्या है 0 1, तो यहाँ पे हमें 1 मिल गया, स्टेट अगेन 1 रहेगी इस केस में भी, क्योंकि आइडेंटिफायर में हमने अलाउ किया था कि लेटर्स के बाद वंस लेटर आ गया जो अंडरस्कोर स्टार्ट में आ गया उसके बाद डिजिट्स भी आ सकते हैं, तो ये इसको भी अलाउ करता जाएगा, स्टेट 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद एम, उसके अगेंस्ट स्टेट 1 और एम के अगेंस्ट हमें लेटर्स रिटर्न, लेटर के अगेंस्ट 0 रिटर्न होगा, तो 1 और 0 के अगेंस्ट रो 1 स्टेट 1 और कॉलम 0 के अगेंस्ट हमारे पास अगेन 1 मिलता जाएगा, और ये भी पर्टिकुलर इंक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे ये स्पेस आएगी तब ये इसके अगेंस्ट भी टोकन जनरेट कर देगा। अब जब ये भी सही चल जाएगा, इसके अगेंस्ट भी, इस ये नहीं चलना चाहिए, रिजर्व वर्ड्स में डिजिट्स नहीं आना चाहिए। से हम कहते हैं कि ये स्पेस थी और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, इसके अगेंस्ट टोकन जनरेट कर लिया था आइडेंटिफायर का, यहाँ पे आ गए डॉलर साइन। अब डॉलर साइन के अगेंस्ट अगर देखें, ये कंडीशन उस टाइम पे स्टेट तो 0 हो चुकी होती है ना, टोकन जब इसके लिए टोकन जनरेट किया तो यहाँ पे स्टेट हम 0 कर चुके होते हैं, राइट, ये स्टेट 0। उस टाइम पे हम ये देखते हैं 0 रो और कॉलम 6 वो तो एक्सेप्ट नहीं है, फाइन, यहाँ पे आगे 0 रो और करेक्टर क्या है जी, डॉलर साइन के अगेंस्ट हमें क्या रिटर्न हुआ, 5, 0 1 2 3 4 5, 5 जब रिटर्न हुआ तो हम कहते हैं 0 रो के 5th इंडेक्स पे गया हमारे पास 4,
तो एक्चुअली ये वैल्यू रिटर्न होगी। और यहाँ पे स्टेट की 0 रो और कॉलम 5 पे हमें क्या मिल गया, स्टेट की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है। और इसी तरह अब उसके बाद स्टेट 4 मिली ना हमें, और नेक्स्ट है जी करेक्टर है, अल्फ़ाबेट आ गया, लेटर। तो लेटर के अगेंस्ट हमें क्या 0 मिलेगा, यहाँ पे स्टेट 4 है और 0। फोर्थ रो पे 0 1 2 3, फोर्थ रो और 0 5 हमें मिल रहा है, जो कि रिजर्व वर्ड में ऐसे ही था। ये है ना रिजर्व वर्ड। डॉलर साइन आ गया, उसके बाद लेटर ही डॉलर में 5 पे। और यहाँ पे भी हमें स्टेट क्या होगी 0 रो, सॉरी फोर्थ रो, और कॉलम यहाँ से डिजिट, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स था तो 0 मिला लेटर्स के अगेंस्ट। तो फोर्थ और 0 के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे 5 हमें मिल गया, स्टेट 5 होगी। अब नेक्स्ट ए आएगा तो भी डिजिट, तो अगेन स्टेट 5 ही रहेगी। आर पे भी स्टेट 5 रहेगी। अब जब 2 आया, ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं था, रिजर्व वर्ड में ये अलाउड नहीं था। या 2 आने के केस में क्या हो जाएगा, अगर हम चेक करें, 2 स्टेट हमारी 5 थी ना, अब चाहते हैं जी 2 डिजिट रिटर्न होगा, डिजिट के अगेंस्ट 1 मिलेगा यहाँ से। अच्छा जी 1 स्टेट 5 और मतलब रो 5 और कॉलम जो है 1। हाँ जी, पैरामीटर चलते हैं जी, फिफ्थ पैरामीटर स्टेट 0 1 2 3 4 5, और इसके कॉलम नंबर 1, तो वो क्या 0 1 -1 मिल गया अब हमें, ये वाला। अ, ये -1 मिल गया, 0 और 1 का। अब जब ये -1 मिला, तो स्टेट की वैल्यू क्या होगी, स्टेट की वैल्यू -1 होगी, इंक्रीमेंट हो गया, जे में भी इंक्रीमेंट हो गया। अब जब यहाँ पे आएंगे भाई इस पे अगले करेक्टर के लिए, तो अब कंडीशन क्या फॉल्स होगी, -1 ना। अब ये चूंकि पर्टिकुलर जो भी कॉम्बिनेशन करेक्टर ये रिजर्व वर्ड्स में नहीं आता है, 2 उसमें डिजिट्स अलाउड नहीं है उसमें, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए, ये -1 हो गया। तो जब कभी -1 होगी स्टेट की वैल्यू, ठीक है, तब हम कहेंगे जी कंट्रोल इस इफ के अगेंस्ट जो एल्स है वहां पे चला जाएगा, सी वेयर इज एल्स यहाँ पे। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ गए, और इस एल्स में क्या है जी, इफ इस स्पेस वही जो पहले भी हम रिपीट करते। अब जब तक रिपीट स्पेस नहीं आते, काउंट में इंक्रीमेंट करते हो, नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करो, काउंट में इंक्रीमेंट करो, नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करो, अनटिल अनलेस स्पेस नहीं है। जैसे स्पेस आ गई, कंडीशन फॉल्स होगी, तब हम क्या करें, स्टेट 0 J 0 काउंट में इंक्रीमेंट। वो जितने भी कैरेक्टर ओ एन जो रीड करेंगे ना, उस टाइम पर वो स्पेस नहीं है, काउंट में इंक्रीमेंट होता जाएगा। और जैसे ही ये स्पेस आएगी एन के बाद, स्पेस के आने पे ये कंडीशन फॉल्स, एल चल देगी, एल आने पे क्या होगा, स्टेट 0 J 0 और काउंट में प्लस प्लस कर दी। सो दैट नेक्स्ट कैरेक्टर, अब ये हमारे एक्चुअल लैंग्वेज का पार्ट नहीं, इसके लिए कोई टोकन जनरेट नहीं होगा, हम आउटपुट में भी देखते हैं राइट, इसके लिए टोकन जनरेट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली डॉलर साइन है, अंडरस्कोर आ जाए तो भी टोकन जनरेट नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज का पार्ट नहीं रहा। रिजर्व वर्ड है ना, रिजर्व वर्ड डॉलर साइन, रिजर्व में ओनली अल्फाबेट्स आएंगे, तो इसके लिए भी टोकन जनरेट नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे एक और चीज थी, अगर रीडायरेक्ट स्टेट है तो ये चल जाए, रीडायरेक्ट नहीं है तो उस केस में स्टेट को -1 फिर भी करना है। देखो ये था ना, कोई कई ऐसी ये वाली पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर चल जाती लाइक दिस, ये सारे सही रीड कर रहे हैं, और उसके बाद कोई ऐसा करेक्टर आ जाता, यहाँ पे कोई शायद कॉम्बिनेशन हो, टू अहमद डॉलर साइन ए अंडरस्कोर, ये देखे ना, ये हुआ ना, अदर एच डॉलर साइन एच ARO AR, उसके बाद 2 आया जब, तो वो अदर में कंसीडर हो गया। यहाँ पे आ गया हम, जब यहाँ पे आए तो ये 7 फाइनल तो है, रीडायरेक्ट नहीं है, तो रीडायरेक्ट नहीं है उस केस में हम कहते हैं -1 है, ताकि यहाँ पे कंट्रोल आए, और वो कंडीशन -1 वाली ट्रू हो। जो भी ओ है, उसके बाद जितने भी कैरेक्टर हैं यहाँ पे, हम वैसे यहाँ पे भी कर सकते थे कि हम लूप लगा देते, अब जो कुछ एनी कुछ भी आ रहा है यहीं पे रहो, स्टे हेयर स्टे हेयर स्टे, लेकिन उसके बाद ये है कि स्पेस, अदर देन स्पेस नॉट स्पेस, तो यहाँ पे रहो, और स्पेस आए तो यहाँ पे आ जाए, ये भी कर सकते थे वैसे DFA में। मैं इस केस को यहाँ पे यूँ डील कर लिया, -1 करके।
तो ये था जी ओवरऑल प्रोग्राम। और अगर हम इसकी आउटपुट भी चेक करें, और इसके अलावा एक चीज़ और जो प्रोग्राम के एंड पे है, ये काउंट बफर का, बफर चेंज करने वाला, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ, राइट। काउंट अगर ग्रेटर देन हो जाता 409 4 एक्चुअली, हमारे पास जो बफर साइज का था 96 है, ठीक है, 4095। देन क्या हो जी, बफर, क्योंकि इनिशियली बफर 1 में डाटा लोड हुआ था, और लेट्स सी कि इफ करंट बफर इज 1 तो बफर 2 हो जाए। और अगर बफर 2 के बाद फर्दर डाटा अगेन थर्ड टाइम डॉट गेट का फंक्शन कॉल होता है, तो बफर 2 के बाद दोबारा काम मूव कर देंगे बफर 1 पे। तो ये इस तरह रिकर्सिवली फर्स्ट बफर 1 पे डाटा लोड होगा, सेकंड टाइम बफर 2, फिर बफर 1, बफर 2 एंड सो ऑन। ये डॉट गेट का फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है, और जैसे ही नया नेक्स्ट टाइम हम डाटा लोड करते हैं तो काउंट भी जीरो, सो दैट अगले बफर का जीरो इंडेक्स से रीड करना शुरू करे। तो ये है जी ओवरऑल। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम को, लेट्स सी इट्स आउटपुट सी, और साथ में हम ये भी खोल लेते हैं। हम माथ, इसके लिए आइडेंटिफायर जनरेट हो गया, और देन अली आइडेंटिफायर, अहमद डॉलर्स एंड रिजर्व वर्ड, अगेन हम माथ विद लेटर 3, माथ विद अंडरस्कोर, जो मतलब ये भी कॉम्बिनेशन आइडेंटिफायर। और उसके बाद ये एक्चुअली जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं बन रहे थे हारून अली, और ये लैंग्वेज का पार्ट है, उसको प्रिंट कर दिया। और ये देखें, ये भी नहीं होगा अहमद, क्योंकि ये आइडेंटिफायर बन रहा है ना, तो आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो उसको उसने इग्नोर कर दिया। ठीक है, और ये इस तरह से उसने टोकन्स भी जनरेट कर दिए। ये था जी ओवरऑल लाइक लेक्सिकल एनालाइजर प्रोग्राम, और ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर दिस लैंग्वेज, लाइक जिसमें कि हमारे पास आइडेंटिफायर और रिजर्वर्स हैं। वट एवर द लैंग्वेज इज, इस तरह डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट में है, तो उसका हम इसका डीएफए डिज़ाइन करें, ट्रांजिशन टेबल बनाएं, और कोड में जस्ट टू डी अरे चेंज होंगे, इनम की चेंज होगा, और यहाँ पे स्लाइड और फर्दर वर्ड्स ऐड हो जाएंगे, लाइक जो भी आपने टोकन जनरेट करने हैं। और ये गेट कैरेक्टर टाइप का फंक्शन इसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, प्लस माइनस होता जाएगा, जितने यहाँ पे होंगे हेडिंग्स, कॉलम नेम्स होंगे, उतनी यहाँ पे फेल्स लगती जाएंगे। तो जी, दिस वाज द ओवरऑल प्रोग्राम। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।